Hello friends, now we are going to discuss about chemical properties by which we can distinguish metals and non-metals. Earlier we studied about how the physical properties, different physical phenomena by which we can distinguish between metals and non-metals. Now we are coming on chemical, how a metal or non-metal can be distinguished chemically by a reaction or by its state of reaction. That whether एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। दोस्तों हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके द्वारा हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से भिन्न है। तो सबसे पहली चीज, इससे पहले हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरीके के फिजिकल फेनोमेना को देखा और उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की। तो before going for chemical properties of metal and non-metal, I need to consider some more things like electron configuration. What is this electron configuration? How the electrons of a particular element shows the possibility of metallic or non-metallic characteristic. Electronic configuration, or we can say it is the tendency to lose or gain electrons. This is the tendency of losing or gaining electrons, shows an element is whether it's reactive, highly reactive, more reactive, less reactive. The all depends upon losing or gaining electrons. Electrons means only one and only outermost shell electrons. Outermost shell electrons. Some points should be noted, like the first one is only electrons take part in a reaction. It's called valence electron. Neither proton nor neutron or nuclei is going to help with the reaction, is going to take part in a reaction. Only electrons, and those electrons which are in valence shell, outermost shell, are the only one which take part in reaction. Second is losing of electron. Why an element needs to lose or gain electron? The element needs to lose or gain electron because they are unstable at their present state, except noble gases. To configure or to gain the property of noble gas, unreactive, stable property, the every element needs to lose or gain electron. So why they needs to lose or gain electron? To achieve noble gas configuration. Is it okay? Noble gas configuration. The third one is the elements losing electron electrons called electropositive. Electropositive element, and the same element gaining electrons are called elements. Now, these are the three topics by which I want to discuss before going for the chemical properties of metal and non-metal और electronic configuration. हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि
किसी भी एलिमेंट का जो टेंडेंसी है वो हमेशा रिएक्टिविटी की तरफ रहती है, रिएक्टिव रहता है, एक्टिव रहता है, क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह चाहता है, नोबल गैस की तरह। नोबल गैस जैसा हम जानते हैं, नोबल गैस आर स्टेबल गैस, वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनके पास किसी भी रिएक्शन के लिए जो जरूरी है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस का आउटर मोस्ट कंप्लीटली फिल होता है, तो इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होता। अब बाकी जो एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो चाहते हैं कि हम नोबल गैस की तरह हो जाए। नोबल मतलब काइंड होता है, नोबल का मतलब अच्छा होता है, सो नोबल। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि क्या क्यों करते हैं। और टेंडेंसी मतलब किसी की भी मंशा जो होती है इलेक्ट्रॉन को देने की या इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसके एटम के सबसे बाहरी परत पर, बाहरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम जब भी बात करते हैं रिएक्शन की तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस पे 3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिससे आपको आसानी होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने में। सबसे पहली चीज है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ना प्रोटॉन, ना न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस, कोई भी पार्ट नहीं लेता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्ट लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मतलब फिर यहां पर वही है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एटम्स के बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस लिख लीजिए इसे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। दूसरा कि रिएक्शन क्यों होता है, तो रिएक्शन इसलिए करता है कोई भी मेटल या नॉन मेटल या कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, मतलब स्टेबल हो जाए, इसलिए स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबल होने के लिए ही वो रिएक्शन करता है दूसरे लोगों से, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है कि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है और इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है। एलिमेंट लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी जिनके आउटर मोस्ट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूजिंग जो कैरेक्टर होता है वो किसमें होता है, ये होता है मेटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन लूजिंग, the characteristic of an element to lose electron, those elements are called metals, and characteristic of gaining electrons is the property of non-metal. हम यहां से पता कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो मेटल होगा, और कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नॉन मेटल होगा। हम देखेंगे कैसे मेटल्स में बिहेवियर वेरी करता है। यहां आपको समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉन पार्ट लेता है। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इस किसी भी रिएक्शन में पार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, और जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है, जो कि मेटल्स है, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है, जो कि नॉन मेटल्स है। इतना हमारे लिए ये बेसिक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे मेटल्स को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। थैंक यू।